Hello everybody, I am from .NET Expert Web Solution. My software company is located at Emperor Building above Goodies Restaurant, Fatehganj, Vadodara. You can find my more detail from www.netexpert.in. I am having 12 plus years of professional experience. You can find my Facebook profile from this URL. Okay, facebook.com/ranabhavin2. Basically we are providing live project training to last year students also. So if you are in a last year, so please contact me on this number, or you can come at this address for inquiry. Up till now 3000 plus students have completed live project training from my center, and they are doing a good job in a different software companies. Basically we are giving training in ASP.NET, PHP, Android, Windows Phone, as well as in all these technologies. हेलो एवरीबॉडी, आज हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे विजुअल स्टूडियो 2013 में, एंड आज एक न्यू सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं, एंड टोटली इन आवर नेटिव लैंग्वेज, दैट इज़ आवर हिंदी लैंग्वेज. इन नेक्स्ट वीक मैं ये सारी सीरीज़, सारी वीडियोस प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैं पोस्ट करता हूँ. अगर आप हिंदी से कंफर्टेबल हो तो ये सीरीज़ कंटिन्यू कर सकते हो. अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल हो तो नेक्स्ट वीक में मैं अदर वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ, वो भी आप देख सकते हो. सो लेट मी स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू क्रिएट न्यू वेब एप्लीकेशन इन विजुअल स्टूडियो. सो हियर Visual Studio, I am having basically Visual Studio 2013, Visual Studio 2010 as well as 2015. Right now we are using Visual Studio 2013. So let me click here. Okay, here you will see start page. Let me close this one. Next topic, how to create new application in Visual Studio. So just go to file menu, just click on new and select website. प्रोजेक्ट बेसिकली हम कब सिलेक्ट करते हैं? जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं. राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन, सो जस्ट क्लिक ऑन वेबसाइट. Here we are using .NET 2013. So by default framework कौन सा है? 4.5. Okay, so just as it is यही रहने दो. We are having two choice, either Visual Basic or Visual C Sharp. Visual C Sharp is the most popular language, so let me select Visual C Sharp. Again here you will find lots of options. So from here just select ASP.NET empty website. This is my location. मेरी जितनी भी वेबसाइट्स है वो ई ड्राइव एंड वेबसाइट फोल्डर में है. अब यहाँ पे टेम्पररी आप कोई भी एक नेम दे सकते हो. सो वेबसाइट स्टूडेंट. सो दिस इज़ अवर प्रोजेक्ट नेम, वेबसाइट स्टूडेंट. इन फ्यूचर में फॉर एग्जांपल दैट इज़ अ हॉस्पिटल, सो आप यहाँ पे एक नेम यूज़ कर सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, शॉपिंग एप्लीकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट, लेट मी क्लिक ऑन ओके. Now here you can see a window, Solution Explorer. Solution Explorer contains different websites. So my by default website is what? Website student, right? एक solution में हम multiple website use कर सकते हैं, but अभी ऐसी कोई situation नहीं है. एक solution में only one website है, that is the website student. ये website क्या contains करता है? web.config file. What is web.config file? It is a one type of XML file here. It's a one type of XML file. हमारे साइट के जो भी ग्लोबल सेटिंग है वो सारे ग्लोबल सेटिंग हम ये web.config फाइल में यूज़ कर सकते हैं. Which type of global setting? For example, global connection string, right? For example, we are having 50 pages, right? So हम सारे पेजेस में कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर नहीं करेंगे. हम कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर कहाँ पे करेंगे? इन web.config फाइल में. सो इन फ्यूचर में अगर पाथ चेंज होता है, सो सारे 50 पेजेस में पाथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको कौन सी फाइल में पाथ चेंज करना है?
this one web.config. anyway अब ये इतना important नहीं है, just close this one. Now next topic, how to create new web page in ASP.NET. So just right click here, select add, and select add a new item. From here just select web form. Let me give a name, for example button demo. Extension is what? ASPX. Just click on add. Again ये सीरीज बिगिनर्स के लिए है, बिगिनर्स, राइट, नॉट फॉर प्रोफेशनल्स. Now you can see here my first page is what? buttondemo.aspx. Visual Studio में आप यहाँ पे देख सकते हो there are 3 options: design, split and source. According to requirement you can change this one, right? .NET आपको by default इतना तो create करके देता ही है, HTML section, it's a head section, body section and body content form section. सो ASP.NET में रूल क्या होता है, आप जो भी फॉर्म क्रिएट करोगे, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, A to Z सारे फॉर्म्स कंपलसरी कौन से टैग में होने चाहिए? फॉर्म टैग में होने चाहिए. कंपलसरी फॉर्म में क्या होना चाहिए? रन इक्वल टू सर्वर. ये आप रिमूव नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एरर आएगी, राइट. सो कंट्रोल सेव मीन्स कंट्रोल एस, सॉरी, जस्ट गो टू डिजाइन. ओके, दिस इज अवर डिजाइन मोड. जस्ट गो टू टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड. यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे. टूल बॉक्स में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं. स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट? इट्स कंट्रोल्स ऑफ ASP.NET, राइट. जनरली हम यही कंट्रोल यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड्स के कंट्रोल्स, राइट. सो फॉर एग्जांपल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप बटन. कैन यू सी अ बटन? यस. सो यहाँ से बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जस्ट सोर्स में जाते हैं. देखो ASP.NET ने क्या किया, ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट किया, राइट. सो यहाँ पे आपको HTML लिखने की ज़रूरत नहीं है, HTML.NET ऑटोमेटिकली क्रिएट करने वाला है. सो ASP::button ID run it equal to server and text equal to button. Again go to design, just select here, go to properties, right. properties किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बटन मुझे सबमिट लिखना है, सो टेक्स्ट इक्वल टू सबमिट. सो जस्ट यू टू रिमेंबर बटन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टेक्स्ट प्रॉपर्टी. टेक्स्ट प्रॉपर्टी आर कॉमन इन ऑल दी कंट्रोल्स, राइट. सेम हियर बैकग्राउंड कलर. सो यहाँ पे एक स्मॉल बटन है, राइट. जस्ट क्लिक हियर, इट्स अ कलर पिकर. यहाँ पे कोई भी आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जस्ट ओके. तो देखो यहाँ पे कलर भी चेंज हुआ है, फॉन्ट कलर. सो देयर इज अ फॉर कलर प्रॉपर्टी. अगेन जस्ट क्लिक हियर, जस्ट सिलेक्ट वाइट एंड ओके. तो यहाँ पे देखो कलर वाइट सिलेक्ट हुआ है, राइट. सो दीज आर दी कॉमन प्रॉपर्टीज, राइट. वो आप एक कोई फॉर एग्जांपल ASP.NET की बुक्स है तो बुक्स में भी एक्सप्लेनेशन होगा, आप ये प्रॉपर्टीज उसमें देख सकते हो, राइट. नाउ पेज नेम, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. पेज नेम क्या है? buttondemo.aspx, राइट. अब मुझे प्रोग्रामिंग करना है, तो जनरली प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? इट मीन्स बटन की क्लिक इवेंट पे मुझे कुछ कोड करना है. So how to start code? So just select your button and double click over here. Just double click. So यहाँ पे आपको पता चलेगा event is generated. Which event? It is a click event. Click event of button. Okay, that's it. It is my page load event. In future में मैं आपको बताऊंगा what is page load event. These are the namespace. Again just forget all this thing. ये अभी इतना important नहीं है. ये by default namespace .NET आपको generate करके ही देगा, right? That's it. अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं. बटन की क्लिक इवेंट पे मुझे समथिंग कुछ कोड करना है, राइट. सो क्या कोड करना है? मुझे गूगल ओपन करना है. सो हाउ टू ओपन गूगल? सो देयर इज अ कोड रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट जस्ट ब्रैकेट सेमीकोलन डबल कोट एंड हियर यू हैव टू टाइप अ URL. सो http://www.google.com. दैट्स इट. कंट्रोल S, सेव. अब ये पेज रन कैसे करते हैं? सो हियर सिलेक्ट योर पेज फ्रॉम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो. सो जस्ट राइट क्लिक ऑन पेज, बटन डेमो. देयर इज अ ऑप्शन सेट एज स्टार्ट पेज. सो जस्ट क्लिक ऑन सेट एज स्टार्ट पेज एंड हियर यू हैव टू क्लिक ऑन द स्क्रीन आइकॉन. सो जस्ट रन.
So you can see here our page name is what, buttondemo.aspx. local host, it means right now ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कहाँ से रन हो रहा है, फ्रॉम लोकल सर्वर मीन्स व्हाट, लोकल होस्ट, इट्स अ पोर्ट नंबर, ये पोर्ट ऑटोमेटिकली रैंडमली चेंज होता है, राइट. सो यहाँ पे अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ओवर हियर. नाउ जस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन. आप अभी यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो पेज है, राइट, वो रीडायरेक्ट हुआ है फ्रॉम buttondemo.aspx से कहाँ पे रीडायरेक्ट हुआ है, गूगल पे. जस्ट अगेन बैक, ओके, buttondemo.aspx, अगेन जस्ट क्लिक हियर, दैट्स इट. नेक्स्ट, ऑलवेज आपको क्या करना है, यहाँ से मिनिमाइज करना है प्रोजेक्ट को, क्या करना है, यहाँ से स्टॉप करना है, एंड देन जो भी वर्क है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो. ओके, सो अगर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन करनी है तो आपको फुल पाथ लिखना पड़ेगा. अगर कोई इंटरनल वेब पेज ओपन करना है तो फुल पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट यू कैन राइट हियर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट. फॉर एग्जांपल मुझे लॉगिन पेज ओपन करना है, सो लॉगिन डॉट aspx. टेम्पररी लॉगिन पेज नहीं है, बट जस्ट एज्यूम करो कि यहाँ पे एक लॉगिन पेज है, सो जस्ट यू हैव टू राइट ओनली लॉगिन डॉट aspx. HTTP लगाने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट. हम नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे बटन as well as text box, how to use button and text box as well as label and so on, right.